हम्म सी तो आज एक नया टॉपिक करते हैं, राइट? कूलम्स फोर्स जितना भी था सारा का सारा निपटा लिया अपन ने. ऑल राइट, सो वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो फर्स्टली आई वांट यू टू गो बैक टू योर लोअर स्टैंडर्ड्स. ठीक. लोअर स्टैंडर्ड्स क्या है? 11th में ही शायद ये डिस्टिंक्शन पता था तुम लोगों को. फोर्स दो टाइप्स की होती है मेनली. एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके. अभी अगर ये आई होती, इसे ने कुछ बात करी होती मस्त सी, तो अपन जो लगाते उसको वो कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर. लेकिन अभी अभी अपन ने देखा इधर कितने सारे एग्जांपल्स हमने लिए कि हमने एक चार्ज लिया है, उसके आसपास में दूसरा चार्ज रखा है. दैट चार्ज इज बेसिकली getting induced, right? It is experiencing some kind of a force. Clear? And we never saw the two charges ever touching each other, right? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमने रियल लाइफ में देखा हो सकता है इज मैग्नेट्स. Magnets do not need to touch each other in order to apply force on each other. Fair. That means there are two kinds of forces. One are contact forces, two are non-contact forces. Now contact forces में what is the thing that is common? तीन चार examples ले लेते हैं contact forces के. क्या क्या examples हैं? See, when we open a door, we kick a football, we push a cart, we open a drawer, we stretch or compress a spring. In each and every one of these examples, you will have to touch the object you are applying force on. Clear? That is why these are quite simplistic forces, right? But when it comes to stretching our imagination, what we observe is here, nobody, no two objects are touching each other. Fair? When the earth revolves around the sun, there is no string attached, not the series. Yes. Then when magnets attract anything, they do not physically stretch their arms, right? Neither does anything basically pull an apple to the ground, right? Via touching it. So these basically the examples are gravitational force, okay, magnetic force, and both. Acha, this is also gravitational by the way, and this is electrostatic force. Clear? हाँ. सो अच्छा, यहाँ पर अगर अपन ने बलून टच नहीं किया है फिर भी वी विल फील दैट द बलून इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द वॉल, राइट? Similarly when we rub this scale to our hair and then we just put it nearer to a paper. Clear? So these are non contact forces. अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? सो द थिंग इज कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एक खास बात होती है. खास बात ये कि यू कैन ओनली फील देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बराबर. अगर मैग्नेट इधर है, लेट्स से आई पुट मैग्नेट समवेयर ओवर हियर, फेयर इनफ, बोर्ड मैग्नेट है मान लो, ठीक. अब मैं इस रूम में हूं और मैंने कुछ मेटालिक पहन रखा है, देयर इज अ गुड चांस कि मैं इसको फील कर पाऊंगा, इस बोर्ड के मैग्नेटिक फोर्स को फील कर पाऊंगा. बट लेट्स अज्यूम आई एम समवेयर इन आदिपुर, 8-10 kilometers away. I am most definitely not going to feel the board's magnetic force, right? Or if we keep a bar magnet on a bench, right? चार benches छोड़ के थोड़ी वो कोई bar magnet किसी चीज को attract कर लेगा. आई बात समझ? That means there is only a certain region till which the influence of anything that exerts a non-contact force is prevalent, right? Now basically that influence is the electric field. Clear? The region around which you can feel its effect, you know, that is the electric field. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग अच्छा, it is hard to imagine but let's imagine this is very chilly winter, very chilly winter, okay, and we started a heater over there. Okay. Now if we are basically sitting around the heater like a bonfire,
we are most likely to experience the heat coming out of it, right? But let's say the heater is there, I am over here, I will feel lesser heat if even I am feeling any heat. Okay, and if I get out of the room, then close the door, there is no heat that I am going to experience. Clear? Neither am I going to experience any heat if I am a kilometer away from the heater. Fair. That means the heater provides its heat only to a certain area. That area is the field of that heater. Clear? Okay, so now we know what field is, right? Similarly, what happens to Bluetooth connection, right? If we are wearing earbuds, and let's say your phone is here, and then you go outside to do any kind of work, okay, there is a possibility, or rather a probability, that your earbuds will get disconnected, because Bluetooth signal is only supported to a certain extent, right? Beyond that, Bluetooth signals cannot support. Acha, when Mataji cooks good food, you know, if we are nearer to the food, that is, and that is only, first of all, why are they cooking food in the living room? Okay, sorry. So the point is, only and only if we are nearer to the food will the saliva come out of our mouth, right? If we are significantly away from the food, there is no way in hell we are going to smell the food. Clear? So the area in which we can experience the effect of force is the field. Now what is field is clear to us. Clear? अच्छा, तो आगे चलते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बातें करते हैं, मस्त. ओके, अब अपने को इधर थोड़ा सा ध्यान बाद में देने का है, इधर ध्यान देते हैं. ठीक है? सो लेट्स से कि आई हैव अ चार्ज हियर, आई मीन आई डू हैव अ चार्ज हियर. ओके, अब ये जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के आसपास में मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आया, दिस वन. ओके, अच्छा, ये आई शुड चूज व्हाइट कलर. ये I took this one. Okay, now this charge will experience a force due to this charge. That is why this charge is in the electric field created by this charge. Clear? Okay, now how to find electric field? How is it numerically calculated, or how can I calculate it? Or let's say, okay, let's just be here. Okay, now the electric field is basically the invisible region of influence, right? The invisible region of influence surrounding a charged particle or an object, right? अगर हम इस रीजन में या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे. नाउ देयर इज अ वे टू डू इट. अब मेरे को नहीं पता कि मैं किस चार्ज के इन्फ्लुएंस में हूं, ठीक है? आई डोंट नो. All I am feeling, if let's say hypothetically I am a charge, okay, and I am traveling freely, all right, in the space, right, I wouldn't know what other charges are lurking in the shadows, right? So when I reach a particular point, all right, that is when I experience a certain force. That means I know that a charge, another charge, is somewhere in the vicinity. Clear? Okay, अब उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करना है, राइट? अगेन मुझे नहीं पता सामने वाला चार्ज कितना पोटेंट है, ठीक? आई डोंट नो. सो व्हाट आई विल डू इज, आई नो व्हाट आई एम, राइट? दैट मीन्स आई एम द टेस्ट चार्ज. आई एम द टेस्ट चार्ज, राइट? ओके, the charge that is applying force is called the source charge. What is it called? The source charge. क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें मैं हूं, उसका सोर्स ही तो ये सोर्स चार्ज है. ये नहीं होता तो मेरे पे फोर्स ही नहीं लगता. ओके, सो व्हाट डू वी डू प्रैक्टिकली? अगेन द सिचुएशन इज आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज. व्हाट वी डू इज, लेट्स से हियर इज द सोर्स चार्ज.
Here is the source charge Q naught, right? I know what I am. I know what I am. That means I know the charge of the test charge. I know the charge of the test charge. Let's say I am Q naught, right? And let's call this Q. Clear? Now, let me define electric field for you by this. Okay. What I'll first do is I'll calculate the force that is being applied on me, because I can feel the force, I can calculate it, right? So when I start calculating the force, I'll come across something like this. Force is K, कैपिटल Q, Q नॉट मेरे पे लग रहा है, मेरा और इस चार्ज का डिस्टेंस का स्क्वायर. क्लियर? अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी, I'll just remove myself from the equation. What I'll do, I'll remove myself from the equation. अगर मेरे को यहां से Q नॉट हटाना है, तो मैं Q नॉट को माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा, प्लस करूंगा, या फिर मल्टीप्लाई करूंगा. डिवाइड कर देंगे, बहुत बढ़िया. तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, ये उड़ जाएगा. दैट मीन्स अब ये सी, दिस वॉज द फोर्स and we divided it with Q naught. Clear? So our electric field mathematically becomes F upon Q naught, right? अब बचपन से पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब इसका डेफिनेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज. क्लियर? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आ जाओ. सो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करी जाए, मैथमेटिकल टर्म्स में बात करी जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज. बराबर? आई बात समझ? पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज कितना फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज दिस. अच्छा, मेरे को नहीं समझना है ऐसे, ये साइंटिफिक तरीके मजा नहीं आता मेरे को. मैं बाहर गया, ठीक है, I went out of station. Let's say I went to Dehradun. It's cold there. It will feel good. Huh. Let's say I went Dehradun. I got out of the airport or the railway station. I tried to book a cab. What will I say to the cab driver? I'll say, I want to travel 20 kilometers. Okay. How much will you charge for it? The cab driver says 300 रुपया लेगा. Right? बराबर? Okay. And then I asked him, okay, no worries, 300 रुपया लेगा, no worries. ठीक है. मेरे को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, इसे 75 रुपीज लेगा. आई अगेन सेज मेरे को 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ही अगेन सेज 150 रुपया लेगा. क्लियर? माई पॉइंट इज दैट उसने 20 किलोमीटर के लिए 300 रुपया बोला, 1 किलोमीटर के लिए कितना हुआ? 15 रुपया. बराबर? 10 किलोमीटर के लिए 150, 15 रुपया. 5 किलोमीटर के लिए 75, 15 रुपया. मेरे को पहले से बोल देता कि मैं 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेगा, तो मैं तो खुद ही से कैलकुलेट कर लेता ना. आई बात समझ? पक्की बात? सो बेसिकली 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का भाड़ा है, दैट इज माय टैक्सी का भाड़ा, राइट? वैसे ही एक चार्ज के लिए जितना फोर्स है, दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली टैक्सी का भाड़ा. क्लियर? डोंट राइट दिस इन पेपर एंड डू नॉट एवर से दैट आई टॉट यू दिस. पता चला सीबीएसई वाले पर्सनली आके मेरे को मार रहे हैं कि ये क्या बच्चों का दिमाग भ्रष्ट कर रहे हो आप, है ना? यस. क्लियर? सो दिस इज अ गुड एनालॉजी. दैट मीन्स कि अगर मेरे को 10 किलोमीटर जाना होगा,
तो मैं सीधा 15 से 10 मल्टीप्लाई करके 150 रुपए खुद से निकालूंगा. दैट मीन्स अगर मेरे पास 10 कूलम चार्ज होगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की मगजमारी नहीं है. सीधा क्या कर दूंगा मैं, फोर्स कैलकुलेट करनी होगी 10 कूलम पे ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन पर कूलम है. 15 इंटू 10 150 न्यूटन पर 150 न्यूटन इज माई आंसर. ठीक है, मैथमेटिकली भी वी कैन अराइव एट दिस कंक्लूजन. ठीक है, मेरे को क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दिया गया है चार्ज. क्या मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ. कैसे? क्यू नॉट को इधर लेके जाओ. ठीक है, सो योर फोर्स बिकम्स ई इंटू क्यू. अभी के लिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. क्लियर बात? फील्ड का फील आ गया? ओके. अब बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं, कुछ घटिया घटिया सी. ये फोर्स पे डिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंडेंट है. चार्ज तो खैर चलो स्केलर मान लिया अपन ने. ये व्यक्ति तो वेक्टर है, दैट मीन्स ये व्यक्ति भी क्या होगा, वेक्टर. ओके. दूसरी बात, टेस्ट चार्ज जो भी लेंगे अपन, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव, विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव. खैर ठीक है, ओके, ताकि मेरे को एक जनरल मिल जाए. उसके बाद नेगेटिव में तो मेरे को बस उल्टी करनी है डायरेक्शन. ओके. नाउ इन दोनों में यही दोनों वेक्टर्स हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में फोर्स और क्यू नॉट में से फोर्स इज द वेक्टर. डायरेक्शन किसके पास है? फोर्स के पास है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी. क्लियर बात? अब आ जाते हैं यूनिट पे. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम. क्लियर? ये फालतू चीजें समझाने की कोई खास जरूरत नहीं. थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके ओके ओके, राइट. पीपल विल सी मी हैविंग चाय. ओके, क्लियर? कंप्लीटली क्लियर? ओके. अगेन बस क्या पूछ रहा हूं मैं अननोन जगह पे घुसा, मैं अननोन जगह पे घुसा. व्हाट इज द मेथड टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड? I am a charge. I know what I am. So I become the test charge. So basically, if I am a scientist and I have to check the field somewhere, okay, what I do is, I put the test charge somewhere. I check the force on it because I can calculate the force, and then I divide it with the very charge that I put in. Clear? That means electric field is force per charge. बहुत बहुत बढ़िया. तो अगर इसी से इसका फॉर्मूला डिराइव कर लूं, तो एक्चुअली डिराइव करके बैठा हूं मैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर? सो बेसिकली दिस बिकम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के क्यू. रिमेंबर दिस क्यू इज द सोर्स चार्ज, ओके, जिसके कारण फील्ड बन रही है वही वाला, अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर इज बेसिकली, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड हैज टू बी मेजर्ड. क्लियर? इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया. नाउ वी कैन मूव अहेड. थोड़ी सी और बातें करते हैं. अब वाईफाई वगैरह के सिग्नल्स हमें पता है, राइट? वी इमेजिन द वाईफाई सिग्नल्स like this. Let's say this is a router and we imagine the Wi-Fi signals to go like this in concentric circles. हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पहले बनाई हुई है ना, वो सर्कुलर होती थी, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो, और जितना दूर दूर जाते थे उतनी कम होती जाती थी, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड में यही नहीं होगा. ठीक? Don't imagine them like a Wi-Fi signal or a magnetic field created by a straight line conductor. बराबर? Due to a positive point charge, the electric field lines, right, are straight lines. Are straight lines. Radiating outwards. Radiating outwards. Okay? Negative charge के लिए उसका opposite.
नेगेटिव चार्ज के लिए उसका अपोजिट। ओके, माय पॉइंट इज, अच्छा माय क्वेश्चन टू यू इज, बोर्ड 3D है कि 2D? बोर्ड 3D है? नहीं नहीं, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूं बस। 2D, इजीली 2D। अच्छा, तो अगर इस पे मैंने ऐसी इमेज रखी है, वरना जनरल क्वेश्चन है, चार्ज इधर रखा है, ये सिर्फ ऐसा चपटा सा बस इधर लेफ्ट और राइट में ही नहीं, तो 3D में हर एक डायरेक्शन में इसकी फील्ड प्रिवेल करेगी। दूसरी बात, एंड दिख रहा है क्या इन लाइनों का किधर भी? दैट मीन्स व्हाट डू वी, बराबर, थियोरेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। हाउएवर वी नो, अभी अभी हमने देखा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वो डिस्टेंस जैसे इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो टेंड जीरो, बराबर। ओके, सो डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ट फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ये इंफिनिटी तक जाते हैं, ये इंफिनिटी से आते हैं, क्लियर? ओके, दूसरी बात, इसकी इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर। ओके, रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? अगर मैंने सेम रेडियस लिया तो मेरे को सेम डिस्टेंस पे लाइनें दिख रही हैं, ठीक है? मतलब रेडियस क्या है? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स। लाइन की इंटेंसिटी भी अगर सेम डिस्टेंस देखूं तो सेम है, मतलब कि सेम डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम। इसीलिए अपन ने क्या बोला? रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड, रेडियली बीइंग द की थिंग। आई बात समझ? अब ये भी पता है अपन को E इज इक्वल टू 1/r²। इधर भी आर ही है, इधर भी आर भी है, इधर भी आर ही है। बाहर निकलता है, अगर बाहर भी आर डिस्टेंस पे आया तो भी आर ही है। दैट मीन्स ही हैज टू रिमेन द सेम, क्योंकि ना के चेंज हो रहा है, के इज कांस्टेंट, ना हम लोग सोर्स चार्ज चेंज कर रहे हैं, क्यू इज कांस्टेंट। द ओनली थिंग वेरिएबल इज द डिस्टेंस, बराबर। ये एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, चलो नाउ यस, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बराबर। अच्छा, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गुचड़ा हो गया है, हाँ राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये ओरिजिनेट जो पॉजिटिव चार्ज से करेंगी वो रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, है ना, स्ट्रेट उनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, और इंफिनिटी तक ये एक्सटेंड होती रहेंगी। आई बात समझ? इक्वल एक्सटेंट होगा हर एक डायरेक्शन में, ठीक, मतलब कि अगर मैं 3 मीटर यहां से दूर हूं, इससे 3 मीटर दूर, तो अगर मैं इससे 3 मीटर दूर दूसरी डायरेक्शन में भी हूं, इससे 3 मीटर दूर मैं इस डायरेक्शन में भी हूं, द फोर्स दैट आई विल एक्सपीरियंस एज अ चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज विल बी द सेम। मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम। अगर मैं 3 मीटर इधर दूर हूं, 3 मीटर इधर दूर हूं, 3 मीटर इधर दूर हूं, 3 मीटर आगे हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर? ओके, ऑफ कोर्स दिस फिगर इज 2D, दिस एक्सटेंड इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, राइट? सेम चीज है उधर, बस माइनस के लिए, कुछ भी अलग नहीं है, राइट? आ जाओ नाउ, टैक्सी वाले भैया का एग्जांपल दे दिया मैंने, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? भाड़ा, बराबर। ओके, तो हम लोगों ने 4 किलोमीटर का भाड़ा, बराबर। उस अंकल ने डायरेक्टली मेरे को बोल दिया 15 रुपया पर किलोमीटर है। मेरे से मैथमेटिक्स मत लगवाओ, मैं पढ़ेला लिखेला नहीं है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, फोन खोलो, जितना किलोमीटर जाना है मल्टीप्लाई करो उसको, बराबर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है, ठीक है, तो जितने चार्जेस मेरे को डालने हैं सिस्टम में, या फिर जितना चार्ज घुसेड़ना है, बस उसकी फोर्स ढूंढने के लिए, उस पर लगती हुई फोर्स ढूंढने के लिए, आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द चार्ज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? अच्छा भाई, आ जाओ आ जाओ, फालतू चीज, बढ़ते हैं आगे, राइट? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कर लिया, ये अभी अभी कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है? पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय डेफिनेशन दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, बराबर। यूनिट चार्ज जो है यही टेस्ट चार्ज है, तो इसी पे सोर्स चार्ज प्लस क्यू से फोर्स लग रहा होगा, दैट मीन्स, और ये कितना है? पॉइंट पी पे है, मान लेते हैं अपन पॉइंट पी पे है, ठीक। पी खुद आर डिस्टेंस दूर है, तो अगर मैंने यहां पर क्यू नॉट लगाया है, देन टेल मी द फोर्स ऑन द क्यू नॉट। के क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये क्यू नॉट डिशुम डिशुम, बराबर। दिस गिव्स अस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ज्यादा बुद्धि है तो कैसे प्रूव करने की? के की वैल्यू रख देने की, ठीक। के की वैल्यू मैं इधर रखता हूं, 1 अपॉन यस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, बराबर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बराबर। याद क्या रखना है वापस से? दिस चार्ज इज द सोर्स चार्ज, दिस चार्ज इज द सोर्स चार्ज, क्लियर। अच्छा भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आई एम जानबूझ के इग्नोरिंग दिस अभी, क्लियर, ओके। कुछ भी सीखने लायक इसमें नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई देखते हैं ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं उस पे जिसको इग्नोर किया था। मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर माने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की। किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की। और फोर्स खुद किसकी डायरेक्शन में? पोजीशन की डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज को देखो और वहां से टेस्ट चार्ज को, सोर्स चार्ज पे खड़े रह के टेस्ट चार्ज को देखो, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगी, और इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर का कैप, डायरेक्शन लेमैन टर्म्स में, सामान्य आदमी के टर्म्स में, सोर्स चार्ज पे खड़े हो जाओ, टेस्ट चार्ज को देखो, घूरो एकदम बढ़िया तरीके से, है, स्कैन इट, चेक इट आउट, यस, है ना। ये जो डायरेक्शन मिली, इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलने वाली है, दैट इज द कूलम्स फोर्स, और इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? फील्ड। अच्छा, इसी डायरेक्शन में क्यों बोला? ये माइनस भी तो हो सकता था, नहीं, टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव, ठीक है, टेस्ट चार्जेस ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर। अगर मान लो गलती से कोई नेगेटिव चार्ज है, उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। आप फिर टेस्ट चार्ज पे आ जाओ, फिर इसको घूरो, आई बात, ठीक। चलो भाई, तो आर कैप, क्लियर। इससे ज्यादा वेक्टर फॉर्म में कुछ भी करने लायक नहीं है, लेकिन वापस से ज्यादा बुद्धि होती है लोगों में। तो बताओ भाई, आर छोड़ो, कोई वेक्टर ए है, तो ए क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड अपॉन या मल्टीप्लाई इनटू इट्स डायरेक्शन, बराबर। दैट इज वाई द डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज द यूनिट वेक्टर, इज खुद ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को आर वेक्टर निकालने का है, तो फिर इट विल बी आर्स मैग्नीट्यूड इनटू आर्स डायरेक्शन। तो आर यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर यूनिट वेक्टर विल बिकम ये आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर। इधर आर वेक्टर दिख रहा है, उसकी जगह पे ये डाल दूं, ओके। तो नीचे आर स्क्वायर ऑलरेडी है,
और नीचे आर भिड़ेगा उससे, आर क्यूब, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा गुचड़ा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, मजे करो, लो वेक्टर फॉर्म, बराबर। ओके, अपने को वैसे भी मैग्नीट्यूड से मतलब है बहुत ज्यादा, डायरेक्शन पूछेंगे तो अलग से दे देंगे। आई बात समझ? ओके, नाउ ओ ओ ओ बड़ा टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कुछ है क्या पहले जिसको डिज्यूम कर दे, या फिर इसी पे आना पड़ेगा? ओ मल्टीपल चार्जेस का गया, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस किधर गया भाई? ये तो पॉइंट चार्ज है, छोड़ो इसी में कर देते हैं, देखते हैं भाई। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेट्स से मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, बराबर। ये एक पॉइंट चार्ज, इसी का भाई इधर दूसरा डाल दो, इसी का भाई इधर तीसरा डाल दो, इसी की बहन इधर चौथी डाल दो, इसी की एक और बहन इधर पांचवी डाल दो, मैं पी पॉइंट पे हूं, ठीक है। क्या होगा, कैसे लगेगी मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैसी एक्सपीरियंस? इस व्यक्ति के कारण किस डायरेक्शन में होगा, राइट? दिस इज E1, अच्छा नाम दे देता है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, बराबर। ओके, इस व्यक्ति के कारण टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस चार्ज के कारण ऐसे, राइट? नहीं, ऐसे, अच्छा, बहुत बढ़िया। सो टूवर्ड्स इट, अरे अरे अंकल, करी कराई मेहनत पानी में डाल रहे हो, हाँ डन, ओके। ड्यू टू दिस नीचे, बहुत बढ़िया, यहां से यूं नीचे, ठीक। दिस इज E5, बाय द वे दिस इज E3, E3 ड्यू टू दिस नीचे, दिस इज E4 एंड ड्यू टू दिस ऊपर E2, क्लियर? तो अभी अपन मान लेते हैं ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ठीक है। कितना हो गया, 30 30 60 40 100 150, 150 है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 150, 150। हाँ, आई बात समझ? 150 नहीं होगा, है ना, मस्त मस्त नंबर दिखे तो प्लस करके नहीं आ जाने का, यस, ऑलराइट। सो इन चीजों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑफ कोर्स बिकम वेक्टोरली एडेड, या फिर वेक्टर सम ऑफ all the electric fields due to all the point charges, क्लियर? वेक्टर एडिशन होगा, बराबर। क्या होगा, वेक्टर एडिशन, बराबर। एंगल वंगल दे दिए अगर मैंने गलती से, तो कंपोनेंट्स निकाल के प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरा वेक्टर एडिशन में घुसने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं करना है, ठीक। इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, इधर ऊपर इधर नीचे, है ना, ये वाला कंपोनेंट इससे प्लस हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, ये एक ये ऊपर, ठीक है, एक इस साइड, इससे ही इसको माइनस कर देना, ऊपर ऊपर प्लस होता रहेगा, ठीक है। फिर इसका वापस से ये और इधर प्लस होगा, लेकिन नीचे की तरफ और जाएगा, इसका
ये नीचे की तरफ और ये इधर की तरफ, ठीक है। टोटल जो भी इस साइड है सभी को प्लस कर देना, टोटल जो भी इस साइड है सभी को प्लस कर देना, टोटल इस साइड वाले सभी को प्लस, टोटल इस साइड वाले सभी को प्लस। अब ये माइनस ये और ये माइनस ये, नहीं नहीं जीरो नेसेसरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। बट नेट वर्टिकल में क्या मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है, और नेट हॉरिजॉन्टल में कुछ भी मिल जाएगा। आपको इन टोटल अगर सब कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो चीजें मिल जाएंगी, फिर उनको पाइथागोरस लगा देंगे पर। क्लियर, ठीक है, पक्का, बढ़ सकते हैं आगे, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ग्राफ पे, ठीक है, अब आते हैं ग्राफ पे। यू वांट अ ब्रेक 2-5 मिनट का? नहीं, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? फोर्सेस दो टाइप की होती है, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई सो रहा था, मैं जाके थप्पड़ मार के आ गया, उसको दर्द हो रहा है, उसके दर्द का एक एक्सप्लेनेशन है मेरा हाथ, है ना, मेरा हाथ। पर एक सुई सो रही थी, अचानक से खिंच गई किधर, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि मैग्नेट ने तो जाके अड़ा नहीं था सुई को। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला था, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, फील्ड। आई बात समझ? सो फील्ड इज द कॉन्सेप्ट दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर, बराबर। अब एक्सप्लेन कर रहे थे फील्ड को, फील्ड क्या निकल के आ गया, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, बराबर। मतलब बेसिकली पर किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, बराबर। अब जितने चार्जेस में बढ़ाता जाऊंगा उतना फोर्स उस पर बढ़ता जाएगा। डायरेक्शन क्या है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है उसकी, डायरेक्शन इज बेसिकली द लाइन जॉइनिंग द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, बराबर। टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज व्हाई वी विल टेक द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, बराबर, ओके। अननोन सोर्स चार्ज हो तो साइंटिफिकली कैसे फील्ड निकालते हैं? सो एक टेस्ट चार्ज पकड़ो, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के बाजू में लेके जाओ, उस पर फोर्स कैलकुलेट करो, उससे टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दो। आई बात समझ? ओनली दीज थिंग्स। देन हम लोगों ने इसकी यूनिट निकाली, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है, न्यूटन पर कूलम, बराबर। कोई और महात्मा आएंगे वोल्ट पर मीटर बोलेंगे, उनको बोलना कल आना, नेक्स्ट चैप्टर में आना, इधर नहीं, भागो यहां से, ठीक, ओके। न्यूटन पर कूलम अपने लिए, बराबर, ओके। एनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर? नहीं, वेक्टर खुद से निकाल लोगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक। एडिशन पता है, वेक्टर एडिशन है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बराबर। ये कोई याद रखने वाली कोई खास चीजें नहीं। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, या अब अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें दूर जाएंगी, बराबर, अगेन रेडियली जाएंगी, अगेन इंफिनिटी तक जाएंगी, बराबर। एक और चीज है, इधर ही बता रहा हूं, कभी भी इलेक्ट्रिक, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट होती थी? नहीं, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन वो आगे जाके सीखेंगे क्यों नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी, बनानी कैसे, बराबर, ओके। फॉर अस द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज रेडियली आउटवर्ड्स बोला है या फिर रेडियली इनवर्ड्स बोला है। रेडियली बोलने का मतलब क्या है? रेडियस का मतलब ही ये है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, वो वाली लाइन है रेडियस। अब अपने को पता है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस से मैं तो मेरे को डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम, बराबर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं, हालांकि इट मीन्स द सेम थिंग, अपन उसको इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बराबर, ओके। हाँ, इंटेंसिटी याद है अपन ने बल्ब की सीखी थी, मैंने जब इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्सप्लेन किया था तब अपन ने बल्ब का एग्जांपल लिया था, है ना। हाँ, बल्ब राखी तो अपना यहाँ, है ना। वो बल्ब से हम लोग जितना दूर जा रहे थे हम लोगों को उतना कम प्रकाश दिख रहा था, लाइट दिख रहा था। सो दैट इंटेंसिटी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन का स्क्वायर, दैट वॉज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। और वही इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स भी, मतलब कूलम्बिक फोर्स भी फॉलो करते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली कूलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो ये भी फॉलो करता है। आई बात,
Okay, now we move on to good stuff. Good stuff. Now give me a minute. Let me sip my tea. Keep it aside so that I can, with content, explain to you. Okay. Hmm. Now, ये बनाने में दिक्कत क्या है? ये बनाने में दिक्कत ये है कि आई हैव टू फैक्टर इन द मैग्नीट्यूड, जो कि इजी है, 1/r² के साथ वेरी करेगा, है ना? अच्छा, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज E is equals to KQ. Q is the source charge upon R square पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अब आई नो के ई इज, अच्छा, आई नो कि के कांस्टेंट है। बीच एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बिल्कुल ही गधेड़ा आदमी नहीं तो क्यू भी चेंज नहीं ही करूंगा, मतलब ये कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही होगी, बराबर। बदलने वाला काम का चाहिए R²। ठीक, ओके। सिंपल वेज टू इमेजिन इट, अगर R² 0 है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या फिर इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो दिस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग R²। ठीक है, ये 0 हुआ तो ये इंफिनिटी होगा, तो मतलब इधर से चालू करेंगे। ठीक, अब जैसे 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 मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, 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 कम होता जा रहा है। अब डिस्टेंस जैसे ही इंफिनिटी हुआ या फिर इंफिनिटी को टेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पे आ जाएगी? 0 के पास। ठीक है, दैट मींस डिस्टेंस किधर जा रहा है? इंफिनिटी पे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? 0 पे, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर? ये अच्छे समझ में आ गया? बट दिस इज व्हेन पॉजिटिव सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज in positive direction, in positive direction। क्लियर? अगर गलती से मैं नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया तो अट्रैक्ट वट्रैक्ट नहीं, मेरे को मापना है। ठीक, अगर मैं नेगेटिव हूं तो इसी व्यक्ति पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर R इंफिनिटी पे है, R इंफिनिटी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के आसपास होगा। R इंफिनिटी, लेकिन माइनस की इंफिनिटी, माइनस की इंफिनिटी किधर? तो इधर मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मापना है, 0 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर। डिस्टेंस ऐसे मापना है, इंफिनिटी फॉर डिस्टेंस इज हियर। ठीक, यहां से। ठीक, अब डिस्टेंस में मैं पास आए जा रहा हूं, मैं पास आए जा रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू उसकी किस में बढ़ रही है? नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। जैसे ही मेरा डिस्टेंस 0 होने लगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होने लगी।
लेकिन माइनस की इंफिनिटी। आई बात समझ? क्लियर? क्लियर? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके, डन, राइट। नाउ अब जरा देखते हैं, इन केस मेरे पास नेगेटिव चार्ज आया, इन केस मेरे पास नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सोर्स चार्ज, आई एम नॉट कंसर्न विद द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज अगेन, इफ इवन इफ आई एम कंसर्न, इट इज पॉजिटिव ओनली। बढ़िया, आई गॉट नेगेटिव। ठीक, अब नेगेटिव में टेस्ट चार्ज लेट्स से टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक, आ जाए, देखते हैं। फिर भी मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी? के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, मतलब माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, यहां पर मेरा डिस्टेंस पॉजिटिव है, माइंड यू, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पर लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेगेटिव, बराबर? यस। अब मान लो मेरा डिस्टेंस जीरो है, और डिस्टेंस किधर जीरो है? पॉजिटिव साइड का जीरो है, मतलब ये रहा डिस्टेंस जीरो, लेकिन पॉजिटिव साइड का जीरो, मतलब इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इधर, इधर किधर, टुवर्ड्स जस्ट द राइट साइड। बट अगर मेरा डिस्टेंस कितना है? जीरो, तो मेरा ई कितना है? इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी पॉजिटिव का इंफिनिटी की नेगेटिव का इंफिनिटी। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यस, नेगेटिव की इंफिनिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव का डिस्टेंस, गॉट इट? अब अगेन डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, नहीं सॉरी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही डिस्टेंस इंफिनिटी रीच करने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रीच करने लगी। आई बात समझ? अच्छा, बाय लॉजिक हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाय लॉजिक अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये, आई बात समझ? ठीक है, पर ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे अपन, अपन तो इसके भी बात को मेक सेंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, बराबर, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज माइनस आर कैप, बराबर। तो यहां पर डिस्टेंस इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बाय द वे। ठीक, सो दिस बिकम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, बराबर। पर अगेन डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव से चालू कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, नेगेटिव से चालू किया, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन को दिख रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों के नेगेटिव्स कैंसल आउट कर जाएंगे। नाउ नेगेटिव का इनफाइनाइट डिस्टेंस, नेगेटिव का इनफाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, डिस्टेंस घटता जा रहा है, डिस्टेंस घटता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। व्हेन द डिस्टेंस ऑलमोस्ट रीचेस जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट रीचेस इंफिनिटी। क्लियर? ठीक, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज के कारण का ग्राफ ये होगा, नेगेटिव का ग्राफ ये होगा। इट मेड क्लियर सेंस टू यू? अच्छे समझ में आ गया? दिस ग्राफ इज आस्क्ड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन एग्जाम। ठीक है, टिक टुक देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, आई फील वी शुड मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, द डायनामिक पार्ट।
यस। ओह अच्छा, टाइम हो गया, एक्चुअली टाइम हो गया, सॉरी सॉरी, यस फॉर श्योर। तो सी देर आर 6 क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक से चालू करते हैं। नो नो, वी आर ओनली डूइंग मैक्सिमम ऑफ 3 क्वेश्चंस, एंड इफ द थर्ड वन इज इवन टफर देन वी विल ओनली डू 2। अरे यार टिक कर ले, 15 मिनट की, 15 मिनट से ज्यादा की वर्क चाहिए। योर डाउट्स ओनली, हाँ कल सॉल्व कर लेंगे, चिल मार। इसमें क्या है, 1 मिनट, इसमें क्या डाउट आ गए? कल कल, हाँ ना, ये पहला क्वेश्चन ही चौथा है हमारा, है ना? यस। उसके बाद दूसरा, उसके बाद वापस से दूसरा। वाह, बक, दूसरे के बाद तीसरा। अच्छा, नाउ इट हैज फाउंड इट सीक्वेंस। तीसरे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठ। वाह भाई साहब, वी डू, वी डू। अच्छा, ये पहला, ये इधर दूसरा, ये इधर तीसरा, आई होप, आई होप, यस तीसरा, अब चौथा, अब पांचवा, अब छठा। ओके गॉट इट, गॉट इट। वी आर इन ऑर्डर, वी आर इन ऑर्डर। घटिया क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, फटाफट। चोपड़ी है, पेन चलाओ। हाँ, मतलब इसमें क्या ही पेन चले, पेन मत चला। बराबर ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 10 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻6 अपॉन आर का स्क्वायर, बराबर। ये 1 0 गया, ये 8 हो गया। ओके, ओए कैल्सी, इसके लिए कैल्सी चूज। देख, ये 1 0 गया, ये 9 का 8 हो गया। 8 - 6 इज 2, 10⁻2 दैट इज 100, बराबर। इधर, यस इधर आ गया 100, और इधर है 9 × 4। और कुछ बचा है नहीं, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर मतलब ये 3, ये 2, और ये 10, 60। ठीक, इसी स्पीड में कैल्सी होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन होनी चाहिए। यस, हाँ, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बढ़े आगे, गंदा सा क्वेश्चन, काले नोट्स में जो हो आ બધું। इज, इटलेज, हाँ चले भाई। क्वेश्चन 2 मस्त क्वेश्चन है। ठीक, what will happen at this point? You can say that, but again, you have learned Coulombic forces from me. When two charges are positive, what happens at their midpoint? That means net charges, net force is 0। अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि फील्ड भी 0 है। बाकी वरना लॉजिकली देखने जाए तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इधर फोर्स 0 है तो फील्ड भी बराबर। करना चाह रहे हैं अगर अपन, तो क्या करेंगे? करना चाह रहे हैं भाई, कुछ भी। हाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस इज ए, आई थिंक, है ना? टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a. P and S is also a, and this is also a. See, where two equal positive charges plus q are placed at a distance a apart, right? So this is a, this is a. Then this distance is of course a by 2, बराबर। मेरे को इधर फील्ड चाहिए, फील्ड चाहिए तो E इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, a by 2 का स्क्वायर, बराबर, a by 2 का स्क्वायर। अब सी, ये तो एक है, दिस इज फील्ड ड्यू टू दिस,
अभी उतना का उतना फील्ड ड्यू टू दिस, मतलब कि माइनस के कैपिटल क्यू ए बाय टू का स्क्वायर इन द एंड। बराबर आया समझ? ठीक। अब P की बात करते हैं। ओके, पॉइंट्स P एंड S। ओके, point S lies midway between two charges. Point P lies at a distance a to the right of the second charge. That means this distance is a. Okay, now at this point there are two electric fields. One or two? Two. One electric field is due to this one is due to this one. इनका नाम रख लेता ना A और B, बराबर। तो इधर इसके कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसके कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। ठीक, अगर 0 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, आई कैन डायरेक्टली एड इट। वेरी गुड। सो बेसिकली यहां पर ई ए प्लस ई बी बन जाएगा, ठीक है, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू ई पी। क्लियर बात? ओके, इसको साइड में लेके जाते हैं अपन। ऑलराइट, सी, so what is EA? Electric field due to A. What is EA? Tell me. K बड़ा Q। ए कैसे स्क्वायर? 2A का स्क्वायर। वेरी गुड, बराबर, प्लस ड्यू टू बी ए। क्लियर? के क्यू पहले से कॉमन लेके बैठ जाऊं। 1/4 A² प्लस 1/A², मतलब के क्यू बाय A² कॉमन, ये 1/4 प्लस 1 कितना होता है? ये 5/4। दिस बिकम्स 5/4 के क्यू अपॉन A²। गंदा क्वेश्चन, ठीक? ओके, नाउ अच्छा एक मिनट, बेसिकली अब दूसरे लोग जो हैं वो जनरली पूरा वो न्यूट्रल पॉइंट वाला टॉपिक इधर उठाते हैं, ठीक है? यहां पर मिड पॉइंट है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट। मैं पूरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं करूंगा फील्ड में, जरूरत है कराने की? अरे न्यूट्रल पॉइंट याद कर। दो इक्वल चार्जेस है, दोनों के मिड पॉइंट पे 0, ठीक? हाँ हाँ, राइट। सो इक्विलिब्रियम हैड पॉइंट्स वेयर देयर वाज नेट जीरो चार्ज ऑन एन एडिशनल चार्ज, राइट? वो जो एडिशनल चार्ज था दैट बिकम्स नाउ दिस पॉइंट एस या फिर पॉइंट पी, ठीक है? तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स कट हो जाते हैं, इसलिए उधर कोई भी चार्ज रखो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। आई बात समझ? वो वापस से करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास है वो, ठीक है? उसके क्वेश्चंस दे दूंगा मैं, अगर नहीं हो रहा है तुम लोग वापस से पूछ सकते हो, ठीक है? और बाकी भी अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है, अब समझ कि ये नहीं सॉल्व हो रहा तेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है? इस इधर क्यों रख दे, क्यों नॉट रख दे, के क्यू नॉट अपॉन A/2 का स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। गॉट इट? नाउ अगर x पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, x पे टेस्ट चार्ज मानना है, टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा, क्या अपने पास बुलाएगा? उस साइड धक्का देगा। वेरी गुड, दैट मीन्स अपने पास ई, अच्छा एक मिनट, हाँ इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ई बी इधर आ गया, ई बी इधर आ गया,
टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, धक्का देगा या पास बुलाएगा, पास बुलाएगा। ओके, इधर ये क्लोजअप का ऐड चलेगा, ठीक, और ये मिल जाएगा अपने को ई सी, क्लियर। और जब अपन ई बी ढूंढने निकलेंगे, क्योंकि वही ढूंढने का है, ई ए ढूंढने का है, सॉरी, ई ए ढूंढने निकलेंगे, एक्स, हाँ एक्स रख ले, एक्स, ठीक है। वेक्टोरली एडेड ई बी प्लस ई सी, वेक्टोरली एडेड ई बी प्लस ई सी, बराबर। ओके, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब ये एंगल 60 है, 120, एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी बात, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के, सोर्स चार्ज क्या है अपॉन डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ई, ये किधर, ये रहा, ठीक, हाँ, के अगेन ई, मैग्नीट्यूड ओनली, बराबर, यस। एंगल कितना है 120, कुछ शॉर्टकट्स कराए थे। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं 120 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट भी वही आएगा, उनका रिजल्टेंट भी वही आएगा, लेकिन मेरे पे भरोसा करने का नहीं, बराबर, यस, वी हैव टू सॉल्व इट। करते हैं भाई, करते हैं। देखो, अब ये है, ये वेक्टर भी ई वेक्टर ही है, ई ही है, और ये भी ई ही है, ठीक है। अब ये बीच में हॉरिजॉन्टल में ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये इधर आ जाएगा ई कॉस 60, फिर अब ये है, ये भी 60 डिग्री है, ये इधर आ जाएगा प्लस ई कॉस 60, ई कॉस 60, ये नीचे की तरफ ई साइन 60 एंड ई साइन 60 कैंसल आउट, ई साइन 60 एंड ई साइन 60 कैंसल द डैश आउट, ठीक। इधर ये कुल मिला के हो गया है 2e cos 60, cos 60 खुद sin 30 होता है, जो कि खुद 1/2 होता है, बराबर। दैट मीन्स माई फाइनल आंसर बिकम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर, बराबर, मजा आ गया, ठीक। तो क्या क्या आंसर्स हैं, लेट्स सी। 60 मीटर्स, एक है 0, इधर 0 है, ठीक है, मतलब कि ई एस इज 0 एंड ई पी इज 5/4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, राइट। लेट्स चेक, 60 मीटर, ई एस 0, 5/4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। आज की क्लास इधर ही समाप्त करें या एक आधा क्वेश्चन करने का टाइम है? नो टाइम, ओके, यस, विल सी ईच अदर टुमारो।